شدید گرمی میں جناح اسپتال کی ایمرجنسی کے AC جواب دے گئے ہیں۔ ہیٹ سٹروک کے خطرے کے دوران مریض اذیت میں مبتلا، حبس اور گرمی سے اسپتال میں صورتحال خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ابراہیم رن سے تفصیلات دیں گے، بتائیے گا۔ جی سے بالکل شہر قائد میں گزشتہ کئی روز سے شدید گرمی ہے، حبس اور ہیٹ اسٹروک کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے، جس کے بعد محکمہ صحت نے مختلف اسپتالوں میں الرٹ جاری کیا اور ایئر کنڈیشن کا ماحول اور وہاں پر بہتر ماحول فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جناح اسپتال کی ایمرجنسی کے اندر لگے درجنوں ایئر کنڈیشن جو ہیں وہ غیر فعال ہو چکے ہیں، ان کی گیس ختم ہو چکی ہے، ٹھنڈی ہوا کے بجائے گرم ہوا دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ آنے والے مریض، طبی عملہ اور ان کے جو تیماردار ہیں وہ بھی شدید پریشان ہیں۔ ڈاکٹر، نرسز اور جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں وہ وہاں پر جو ہے خدمات سر انتظام دینے پر جو وہ شدید پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسپتال کی انتظامیہ کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ اس حوالے سے فوری طور پہ اقدامات کیے جائیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے ان کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ ویسے ہیٹ اسٹروک کا خدشہ ہے، ان کو اس گرمی اور حبس کے اندر کام کرنا انتہائی مشکل ہو رہا ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو مریض اور تیماردار رہ رہے ہیں ان کی حالت پہلے سے ہی زیادہ بگڑ رہی ہے کہ شدید گرمی ہے، حبس سے بند ایک ایریا ہے اسپتال کے جو ایمرجنسی کے اندر مختلف کونوں پہ کمرے بنائے گئے ہیں، وہاں پر ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہتر ہونے کے بجائے مزید جو ان کی حالت جو ہے وہ مزید خراب ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اور خاص طور پہ محکمہ صحت سندھ اور اسپتال کی انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر اقدامات کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے مزید ہیٹ اسٹروک بھی ہو سکتا ہے، لوگ مزید پریشان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو خدارہ ایئر کنڈیشن کا ایک تو یہ بتائیے گا کہ کتنی دیر سے یہ مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے، اور عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیچھے سے انتظامیہ کی طرف سے AC بند کر دیے جاتے ہیں، تو ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ یہ ہے کہ کچھ ایئر کنڈیشن پہلے ہی خراب تھے، اکا دکا چل رہے تھے، انہوں نے بھی آج جواب دے دیا ہے، مزید چلنے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج جو ہے حبس زیادہ ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے ترجمان سے بات کی ہے، جو وہاں کے جناح اسپتال کے ترجمان ہیں وقاص، ان سے بات کی تو ان کا کہنا ہے، انہوں نے واقعی میں اس کی تصدیق کی ہے کہ ایئر کنڈیشن کی جو ہوا ہے وہ نہیں ڈالی جائے گی، اس کی گیس جو ہے وہ نہیں ڈالی جائے گی، جس کے بعد وہ ٹھیک ہو سکے گا۔ اور معاملہ یہ بھی ہے کہ جو پیف ہے، پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن، وہ جناح اسپتال کے مختلف شعبہ جات کو ایئر کنڈیشن اور دیگر ماحول فراہم کرتا ہے، لیکن پیف جو ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دے رہا، اور اسپتال کی انتظامیہ اور خاص طور پہ ترجمان نے پیف کی انتظامیہ کو لکھ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ ایئر کنڈیشن خراب ہے، شدید گرمی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پیف NGO ہے جناح اسپتال کے اندر، جو کہ مختلف شعبہ جات کی نگرانی کر رہی ہے، اور یہ سسٹم بھی ان کے پاس ہے کہ ایئر کنڈیشن کا ٹھیک کرانا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ ذمہ داری پیف کی ہے، وہ ٹھیک کرائے گا تو ہی یہ ایئر کنڈیشن ٹھیک ہو سکیں گے، ورنہ فی الحال عملہ، مریض اور تیماردار جو وہ گرمی میں حبس میں جس طرح رہے اس پہ انتظامیہ بے بس ہو چکی ہے، کیونکہ NGO پیف ہے اور وہ جب تک ٹھیک نہیں کرائے گی تو اس کا مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ خمیازہ جو ہے وہ مریضوں کو اور طبی عملے کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر، نرس، پیرامیڈیکل اسٹاف نے کہہ دیا کہ اگر آئندہ چند گھنٹوں کے دوران ایئر کنڈیشن کا ماحول ٹھیک نہیں کیا گیا، ایئر کنڈیشن وہاں پہ ٹھیک نہیں کرائے گئے تو وہ وہاں پہ کام نہیں کریں گے، جبکہ جس کا خمیازہ انتظامیہ کو بھگتنا پڑے گا، اور اس حوالے سے احتجاج کرنے پہ بھی مجبور ہو سکتے ہیں۔ جبکہ جو مریض ہیں ان کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، ایمرجنسی میں زخمی آ رہے ہیں یا مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر آ رہے ہیں، وہ شدید گرمی، حبس اور پسینے سے شرابور ہو چکے ہیں۔ ہیٹ اسٹروک کا سیزن ہے، اور ویسے بھی آج شہر قید میں گرمی ہے، تو انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پہ اقدامات کرے، NGO کے ساتھ بات کرے، جو بھی ہے معاملہ سیٹ کرے تاکہ ایئر کنڈیشن ٹھیک ہو سکیں، مریض اور عملہ سکھ کا سانس لے سکے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی شہر میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ ملیر کی مویشی منڈی میں مختلف نسلوں کے بکرے پہنچ گئے ہیں۔ تھر پارکر کے سامروٹی بکرے خریداروں کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں، جن کی قیمت 1,10,000 روپے تک بتائی جا رہی ہے۔ ویپاریوں کے مطابق مہنگائی، ٹرانسپورٹ اور دیگر اخراجات بڑھنے کے باعث جانور مہنگے ہوئے ہیں۔ بات کریں گے رمشا اسماعیل سے۔ جی بالکل، شہر میں مویشی منڈی قربہ کی آمد ہے۔ ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناردرن بائی پاس پر بھی جو ہے منڈی سج چکی ہے، اس کے ساتھ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی چھوٹی بڑی منڈیاں جو وہ سج چکی ہیں۔ اس وقت میں ملیر میں موجود ہوں، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ بکرے آ چکے ہیں، اور اگر ہم بات کریں تو مختلف اقسام کے بکرے جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ سامروٹی نسل کے بکرے بھی جو ہے اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ اس حوالے سے ہم جانتے ہیں بیپاری سے، مجھے بتائیے گا کون سے بکرے جو ہیں وہ یہاں پر سامروٹی نسل کے ہیں، یہ بکرے کہاں سے آتے ہیں اور ان کی قیمتیں کیا ہیں؟ یہ سامروٹی بھی بکرے ہیں، نواب شاہ کے ہیں، ٹنڈو اعظم کے ہیں، میر پور کے ہیں، یہ قیمتیں ان کی الگ الگ ہیں۔ سامروٹی نسل کا بکرا وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کالے رنگ میں، اس کی کیا قیمت؟
उसको मांगने को 1,10 है, लेकिन बेचने में 70,000 का है। अच्छा, मतलब जो आते हैं अगर 1,10 पे भी लोग ले जाते हैं या फिर उस पे करते हैं, बहस करते हैं? बहस करते हैं। 70 में फिर दे देते हैं? 70 में, हाँ 70 में फाइनल दे दें। अच्छा, मुझे ये बताएं रश कैसा है इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं रश नहीं है। नहीं है, रात को होता है रश, अभी गर्मी हो रहा है, अभी गर्मी है बहुत, रात को रश होता है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि अभी जो है ये इसकी कीमतों में, अखराजात में कितना फ़र्क जो है वो पड़ा है? अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात कर लें तो ट्रांसपोर्ट की कीमतों में कितना फ़र्क पड़ा है? पहले एक बकरे के ऊपर खर्चा 1,500 आता था, अब 3,000-3,200 खर्चा आ रहा है एक का। मतलब महंगाई हो चुकी है। महंगाई हो चुकी है। लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, बकरे मुख्तलिफ इक़साम के यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। लाड़काना की नस्ल के बकरे की हैं, सामरोटी नस्ल के बकरे भी हैं। 1,70,000 कीमत, 1,10,000 कीमत है। 1,10 है जी, बिल्कुल 1,10 है। और इस पर अगर हम थोड़ा बार्गेनिंग कर लेते हैं तो वो तकरीबन जो है वो 70,000 तक जो है वो दे देते हैं। और शहरियों का अगर हम रश की बात करें तो रात के औकात में शहरियों का जो है वो रश ज़्यादा देखने को। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ सज चुकी हैं। मंडियों में गाय और बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। मलीर मंडी में भी गहमा गहमी उरूज पर है। व्यापारियों के मुताबिक गाय की कीमत 1,70,000 रुपए से शुरू हो रही है। वजन के हिसाब से कीमत में इजाफा हो जाता है। मज़ीद जान लेते हैं राबिल सदीद से। जी राबिल, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ईद कुर्बा की आमद है और ऐसे में जो है वो मुख्तलिफ मकामात पे मंडियाँ सज गई हैं। और इस वक्त भी मैं मलीर की एक मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे कैमरामैन हसनैन आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते चले। तो यहाँ पर जो है वो बड़ी जो है वो वसी पैमाने पर मंडी सज चुकी है। और यहाँ पर जो है वो गाय जो है मुख्तलिफ नस्लों की गायें जो है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो एक व्यापारी मौजूद है, इनसे थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। मुझे ये बताएगा कि आप लोगों का जो ये यहाँ पर है, इस मुझे बताइए कितने का जानवर कितना महंगा है और सबसे सस्ता वाला जानवर कितने कीमत का है? सबसे सस्ता वाला कीमत 1,70,000 तक, 1,65,000 तक। और जो महंगा है सो महंगा है वो तकरीबन 5.5 लाख, 4.5 लाख से ऊपर है सारे। अच्छा, मुझे भी बताएगा कि अब ईद कुर्बा की आमद है, तो ऐसे में रश कैसा होता है? मतलब दोपहर से जो है वो शाम के या रात तक के दौरान कितना रश होता है? अभी तो गर्मी है, आप भी देख रहे हैं, तो अभी कोई भी ग्राहक नहीं आ रहे। रात को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ग्राहक आते हैं, पार्टियां भी बहुत आती हैं। और रात को मतलब जो माल निकलता है रात के टाइम। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे व्यापारी मौजूद है और उनका यही कहना है कि दोपहर के औकात में तो रश तो क्योंकि कम होता है, क्योंकि इस वक्त शदीद गर्मी जो है वो महसूस की जा रही होती है। लेकिन जैसे ही रात लगती है, मगरिब के बाद से जो है वो रश बढ़ना शुरू हो जाता है। और ना सिर्फ यहाँ पर मलीर में मंडी कायम है, बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर शहर पर जो है वो मंडियाँ सज चुकी हैं। और बच्चे तो खुशी के जो है वो इस वक्त मतवाले हो जाता है, क्योंकि बच्चों को वैसे ही फेवरेट होती है ईद के मुख्तलिफ जो है वो गायें होती हैं, जानवर बकरे वगैरह बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता है। और ऐसे में जो है वो सबसे सस्ती जो गाय इस वक्त फ़रोख्त की जा रही है सबसे मुनासिब दामों में वो 1,70,000 में, जबकि जो सबसे महंगी फ़रोख्त की जा रही है वो 4.5 से 5 लाख रुपए फी जो है वो जानवर फ़रोख्त की जा रही है। ईद उल अज़हा से कबल सफूरा टाउन में सफाई सुथराई के खुसूसी इंतज़ामात का आगाज़। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखेली कहते हैं कि टाउन का अमला और मशीनी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ मिलकर ईद कंटीजेंसी प्लान पर अमल दरामद कर रहा है। ईद से कबल और अयाम कुर्बानी के दौरान अंदरूनी गलियों और रिहायशी इलाकों से आलाइशें और कचरा रिक्शों के ज़रिए बर वक्त उठाया जाएगा, ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। मज़ीद जान लेंगे रिजवान अहमद से। जी बड़ी तैयारियां सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कंटीजेंसी प्लान सामने आ गए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि माजी की तरह एक मरतबा फिर जो टाउन हुकूमतें हैं उनकी खिदमात दरकार होंगी शहर को साफ़ सुथरा बनाने के हवाले से और ओफर लिफ्टिंग के हवाले से। गुज़िश्ता बरस भी जो है इस किस्म की खिदमात मुख्तलिफ टाउन हुकूमतों ने फराहम की थी। इसी सिलसिले में कंटीजेंसी प्लान जो है वो सफूरा टाउन की तरफ से भी जो है वो मुरतब कर लिया गया है। राशिद खासखेली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं सफूरा टाउन के। इनसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा ईद कंटीजेंसी प्लान में क्या क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो हमारी एक मीटिंग हो चुकी है जो कि सॉलिड वेस्ट की तमाम टीम थी और हमारे अफसरान के दरमियान और जो हमारे काउंसिल के मेंबर्स हैं, इसके अलावा जो यूसी के चेयरमैन हैं, ये तमाम हजरात यहाँ पर मौजूद थे। और यूसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन से उनकी डिमांड पूछी गई कि आपको कितनी गाड़ियों की ज़रूरत होती है ऑफिल वगैरह रिमूव कराने के लिए, तो वो सारी डिमांड्स उनके सामने आ चुकी हैं। तो इंशाल्लाह 1-2 दिनों इस वीक में हम एक फ़ाइनल मीटिंग करेंगे और उसको हतमी शक्ल दे देंगे
जैसे कि पिछले सालों में हमने काम किया है, यहाँ पर एक अच्छा किरदार रहा हमारे साथ सॉलिड वेस्ट वालों का, और हमारी अपनी भी कुछ गाड़ियाँ होती हैं, कैंप्स वगैरह। अच्छा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। पिछले उसमें भी हमने देखा कि सॉलिड वेस्ट मुतअद्दिद टाउन हुकूमतों में नाकाम हुआ, तो प्लान बी के तहत जो है वो टाउन हुकूमतों ने अपनी मशीनरी और अमला मैदान में उतारा। तो आपका क्या इस हवाले से प्लान बी तैयार है? जी बिल्कुल, जैसे कि पिछले साल भी हमारा प्लान बी था, इनका भी अच्छा किरदार रहा, बहुत अच्छा रहा, मगर कहीं कहीं कम पड़ जाते तो फिर हमारे कैंप्स, हमारी गाड़ियाँ फौरी तौर पे हम वहाँ पर मूव करवा देते थे। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि ईद से कबल जो है जानवरों की आमद होती है, गार्बेज में 30% बताया जा रहा है कि इजाफा हो जाता है, तो क्लीन पूरे टाउन को बनाने के लिए क्या इजाफी इकदाम जो है वो उठाए जाएंगे? वो यही है कि एक तो हमारी अपनी मशीनरी है, दूसरा सॉलिड वेस्ट की मशीनरी भी है, तो इंशाल्लाह मिलजुल के इसको टाउन को साफ़ सुथरा रखेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता बरस जो है वो कारकर्दगी यहाँ पर बेहतर रही थी, उसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। जी, सड़कें बनी अमवात का रास्ता, एक माह में दर्जनों खानदान उजड़ गए। रवां माह ट्रैफिक हादसा का खौफनाक स्पेल, 27 जानें ज़ाया, एक खातून और बच्चे समेत 27 अफराद जान की बाजी हार गए। ट्रैफिक हादसात ने शहर को हिला कर रख दिया। रवां साल ट्रैफिक हादसात में अमवात 384 तक पहुंच गई हैं। 462 अफराद जख्मी हुए, लापरवाही बन गई वजह मौत। हर रोज़ नई हलाकतें रिपोर्ट। सड़कों पर कंट्रोल कब होगा, शहरी सरापा सवाल है। तो आपको बताते चलें कि सड़कें बनी मौत का रास्ता, एक माह में दर्जनों खानदान उजड़ गए। रवां माह ट्रैफिक हादसात का खौफनाक स्पेल, 27 जानें ज़ाया हो गई हैं। इस पर बात करेंगे, दुरुशवार हमारे साथ मौजूद हैं। दुरुशवार, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये रवां माह जो ट्रैफिक हादसा का जो डेटा है वो सिटी 21 के पास मौसूल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि रवां माह अगर हम मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जहाँ बस अफराद के आदाद शुमार के हवाले से मैं आपको आगाह करूँ तो 27 अफराद जो है अब तक लुक़मा अजल बन चुके हैं मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में, जबकि 13 अफराद जो है जख्मी हुए हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम नजर डालें रवां साल के ट्रैफिक हादसा के, जो कि भी डेटा जो है सिटी 21 पर एक्सक्लूसिव जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। इस हवाले से अगर मैं आपको आदाद शुमार के हवाले से आगाह करूँ तो 384 जो अफराद हैं वो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जाँबाज हुए हैं, जबकि 462 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जख्मी हुए हैं। अब अगर इन्हीं को हम जो है महीने वाइज अगर हम देखें, माहाना आदाद शुमार पर नजर डालें तो जनवरी के महीने में जो है वो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जहाँ बहक अफराद की जो तादाद है वो 83 थी, जबकि जख्मियों की तादाद 110। फरवरी के महीने में 98 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जहाँ बहक हुए थे, जबकि 63 अफराद जख्मी हुए थे, जबकि मार्च के महीने में 96 अफराद जहाँ बहक, 239 अफराद जख्मी। अप्रैल गुज़िश्ता महीने अगर हम नजर डालें ट्रैफिक हादसा में जाँबाज होने वालों की तो 80 अफराद जाँबाज हुए थे, जबकि 37 अफराद जख्मी। इसी तरह मजबूत तौर पर जो आदाद शुमार सामने आए हैं वो 384 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जनवरी की पहली तारीख से लेकर अब तक जाँबाज हुए हैं, जबकि 462 अफराद जख्मी। सिर्फ इस महीने जो है 27 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जाँबाज और 13 अफराद जख्मी हुए हैं। जी, दुरुशवार आगाह करी थी, बहुत शुक्रिया आपका। अदालत ने मुनशियात केस में उम्र कैद की सज़ा कलअदम करार दे दी। मुनशियात बरामदगी केस में मुजरमों की अपील मंजूर, दरख्वास्त गुजार किसी और मुकदमे में नामजद नहीं तो फौरी रिहा किया जाए। तो आपको बताएं कि अदालत ने मुनशियात केस में उम्र कैद की सज़ा कलअदम करार दे दी है। मुनशियात बरामदगी केस में मुजरमों की अपील मंजूर कर दी गई, दरख्वास्त गुजार किसी और मुकदमे में नामजद नहीं तो फौरी रिहा किया जाए, अदालत ने ये कहा है। अदालत ने मुनशियात केस में उम्र कैद की सज़ा कलअदम करार दे दी है। सिंध हाई कोर्ट ने जायदाद के तनाज़े से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार आरिफा अंजुम को 50,000 रुपये हाई कोर्ट क्लिंग के जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। बात करेंगे जवाद आसिफ से, बताइएगा। जायदाद के तनाज़े के हवाले से नज़रसानी की दरख्वास्त है। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार आरिफा अंजुम को 50,000 रुपये जुर्माने की रकम सिंध हाई कोर्ट के क्लिनिक में जमा करवाने की हिदायत भी की है। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि जो दरख्वास्त गुजार है उसने जो एक ही जायदाद है उसकी मिल्कियत के हवाले से मुतज़ाद दावे किए। पहले मौक़िफ़ में कहा गया कि 2009 में ये प्लॉट्स ख़रीदे थे। दूसरे दावे में कहा गया कि 2008 में जो है वेलफेयर सोसाइटी
सोसाइटी ने अलॉट की थी। तीसरे दावे में कहा गया कि जो है वो सिंध गोट आबाद स्कीम की सनत के तहत जो है वो ये मिल्कियत उनके पास थी। ताहम अदालत ने कहा कि जो है वो इनके मुतज़ाद दावे थे और जो इन्होंने सिंध गोट आबाद स्कीम की जो सनत पेश की थी उसे मुख्तियार कार ने जाली भी करार दिया है। जी। मशरक़ वस्ती में जंगी सूरत हाल की वजह से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसलात ज़र अप्रैल में माहाना बुनियाद पर कम हुई। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर एसोसिएशन साबिक नायब चेयरमैन अदनान फराचा ने कहा है कि अप्रैल में तरसलात ज़र में माहाना बुनियाद पर सऊदी अरब से 8%, UAE से 11%, GCC ममालिक से भी 11% कमी हुई। तफसीलात से आगाह करेंगे मेरा चीफ अशरफ खान, आगाह कीजिएगा। देखा जाए मशरक़ वस्ती की जो सूरत हाल है उस पर तरसीलात ज़र में असर देखा गया है। अप्रैल में देखा जाए एक माह में जो है तमाम जो गल्फ़ ममालिक से जो तरसीलात ज़र में कमी हुई, 11% तक की मैक्सिमम कमी हुई। इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या वजूहत, आगे जाके देख रहे हैं। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जो साबिक नायब चेयरमैन है अदनान फराचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। $3.5 अरब की तरसीलात ज़र तो आई, लेकिन तमाम गल्फ़ ममालिक से जो आपकी तरसीलात थी वो उस 11% तक कमी हुई है। क्या वजूहत है माहाना बुनियाद पर? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो जंग की सूरत हाल है उसकी वजह से बड़ा ये इम्पैक्ट पड़ा है। आने वाले वक्त में अगले महीनों में ये और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। रेमिटेंसेस में कमी भी आएगी। मैन पावर का बिज़नेस जो है उसमें भी कमी देखने में आ रही है। हमारा सऊदी अरेबिया मेन चंक है हमारी मैन पावर का, रेमिटेंसेस का, वहाँ से भी कमी आई। UAE हमारा है नंबर 2 पे, वहाँ पे भी रेमिटेंस में कमी हुई, मैन पावर में कमी हो रही है। ओमान का सेक्टर है हमारा 1.5 साल से अफेक्टेड है। दूसरे गल्फ बेस हमारी जो मेन रेमिटेंसेस है वो आती गल्फ़ ममालिक से हैं। इस टाइम पे गल्फ़ ममालिक अफेक्टेड है जंग की वजह से। तो इसमें तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रॉपर एक फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत होगी। जो जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनको जो हमारी मैन पावर जो भेजते हैं उनके साथ बैठ के उसका लाइमल बनाना पड़ेगा ताकि हम मैन पावर के बिज़नेस को बेहतर बना सकें। क्योंकि मैन पावर का बिज़नेस बेहतर होगा तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है आपकी रेमिटेंसेस पे। रेमिटेंसेस आपके मई में ईद की वजह से भी बढ़ेंगी थोड़ी सी, या इधर इससे $3.5 बिलियन पे इस पर स्टेबल रहेगी। लेकिन जुलाई ऑनवर्ड रेमिटेंसेस में कमी देखने में आएगी। उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। ये बहुत अलार्मिंग है इस टाइम पे सिचुएशन। हमें नए वेन्यूज़ के साथ साथ जो मौजूदा हमारे वेन्यूज़ हैं उनके ऊपर देखना पड़ेगा। जो हमारी करप्शन है जिसकी वजह से 12 हम दरख्वास्त कर चुके हैं कि 25 से 30% हमारी मैन पावर के जाने की कॉस्ट बढ़ गई है। उस कॉस्ट के अंदर किस तरह कमी लानी है, शफाफियत कैसे लानी है, उसके ऊपर देखना चाहिए। जी अदनान साहब, देखा जाए बैरून मुकीम पाकिस्तानी जो नौकरी के लिए जा रहे हैं उसमें अगर डाटा है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का बड़ी कमी देखी गई है। जो पहले हम देखा गया था तो 4 महीने की बात करें, साल 2026 के पहले 4 महीने में डाटा तो कुछ और दिखा रहा है, बहुत कम, 1 लाख भी बहुत मुश्किल दिखा रहा है। देखिए, इस टाइम पे जो मैन पावर का बिज़नेस है 2026 में कम होगा। और अगर हमने अभी भी फ्रेंडली पॉलिसीज़ ना बनाई और हर दूसरे तीसरे महीने नई से नई इम्प्लीमेंटेशन की, जिसकी वजह से करप्शन के अंदर इजाफा होगा, उसकी वजह से मैन पावर का बिज़नेस 2026 में भी कम होगा, 2027 में भी कम होगा। देखें, बात यह है कि मैन पावर का बिज़नेस बढ़ सकता है। इस सिचुएशन में भी हम पिछले साल से पीछे ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो B2B जाके हम बिज़नेस को जनरेट कर रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारी मिनिस्ट्रीज़ को बैठ के इसका लाइमल बनाना पड़ेगा। ना कि आप बेजा सख्तियाँ डालेंगे, उससे हमारा मैन पावर का बिज़नेस कोलैप्स होगा। एक्सपोर्ट के साथ रेमिटेंसेस हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने फील्ड मार्शल साहब से, उनकी टीम से, सबसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे रेमिटेंसेस मेन चंक है, इसको बचाया जाए। जी, जैसे कि आपने सुना, सबसे बड़ा कंसर्न है कि माहाना बुनियाद पर तरसीलात ज़र में बड़ी कमी देखी गई है। सबसे अहम कि गल्फ़ ममालिक से माहाना 11% तक की मैक्सिमम कमी हुई है। और कहा जा रहा है, माहिरीन का ये कहना है, आगे आने वाली यानी जुलाई के बाद से बड़ी कमी हो सकती है, लेकिन इसके लिए प्लानिंग करना होगी। सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में सोना $53 सस्ता, फी औंस सोना $8,513 तक गिर गया। मुकामी मार्केट में फी तोला सोना ₹5,300 सस्ता हुआ। फी तोला सोने की कीमत $4,88,362 हो गई। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी, आलमी मार्केट में सोना $53 कमी से $4,660 फी औंस तक कमी हो गई, जिससे 1 तोला सोना जो है मुकामी मार्केट में $5,300 कमी से $4,88,362 का हो गया है। 10 ग्राम सोना $4,544 कमी के बाद $4,18,691 का हो गया है, जबकि 1 तोला चांदी जो है $8,513 पर बरकरार है।
ٹھیک ہے، بیورو چیف اشرف خان آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرپرسن پاکستان سیوک فورم کی بیگم سلمہ احمد انتقال کر گئی ہیں۔ سابق رکن اسمبلی کے انتقال پر سیاسی اور سماجی حلقوں میں رنج و غم ہے۔ مرحومہ کی ملکی اور سماجی خدمات کو خراج عقیدت۔ پی ایس ایف کے مطابق بیگم سلمہ احمد کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بشیر حسین سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا۔ جی، جیسے کہ پاکستان سیوک فورم کی چیئرپرسن اور سابق رکن اسمبلی بیگم سلمہ احمد انتقال کر گئی ہیں۔ بیگم سلمہ احمد کی وفات سیاسی اور سماجی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی لہر پیدا کر گئی ہے۔ پاکستان ایک مخلص سیاسی سماجی رہنما سے اس وقت محروم ہو گیا ہے، ہر آنکھ کا شکار ہے۔ بیشتر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے پیارے تھے جنہوں نے بچھڑنے کے بعد اظہار افسوس کیا ہے۔ بیگم سلمہ احمد کی ملک میں سماجی اور خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ مرحومہ نے اپنی زندگی میں ملک اور قوم کی خدمت کے لیے وقت کی کر رکھی تھی۔ ساتھ ہی مزید جو ترجمان ہیں پی ایس ایف، ان کے بھی کہنا تھا کہ بیگم سلمہ احمد کی وفات قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لواحقین کے لیے صبر و جمیل کی بھی جو ہے وہ دعائیں کی گئی ہیں۔ پاکستان سے فورم کا اظہار تعزیت کی۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔